Hello students, you are welcomed to the video lecture series of Discrete Structures and Theory of Logic. In this video lecture, we will discuss generating function and we will see the method how we can solve the homogeneous or non-homogeneous equations, recurrence relation equations using the generating function. So here we go to start our topic. So what is a generating function? We will discuss that. Let's say if a1, a2 and a3 and so on an is a sequence of real or complex number, then the power series given by, if you give the power series by this, in this az will be called generating function where it is summation of r equal to 0 to infinite, right? r 0 से start होकर infinite तक आपका summation है a r z की power r, right? If this type of function is there, you call it as generating function. So student, अगर हम r की वैल्यू 0 से पुट करना शुरू करें, so we will get first term as a0, then r equal to 1 पुट करेंगे तो a1z, r equal to 2 पुट करने पर a2z स्क्वायर, r equal to 3 पुट करने पर a3z क्यूब एंड सो ऑन. बीच में आपको एक टर्म मिल रहा होगा an z की पावर n एंड सो ऑन, बिकॉज इनफाइनाइट तक आपका समीशन है. सो दिस सीरीज विल गो ऑन, राइट? सो जनरेटिंग फंक्शन आपका, ये जो आपका सीक्वेंस है, ये जो आपको फंक्शन मिला है, दिस विल बी जनरेटिंग फंक्शन. Right, I hope that is clear. Now consider this question. In this question, you are asked to find the generating function for the following series. If you are given with a series and series is 1 minus 1, 1 minus 1, 1 minus 1, and so on, right? So in this case, A0 is 1, A1 is minus 1, A2 is 1, A3 is minus 1, and so on. This will go on, right? So now you can put the value in that. What you can do, you will place a value in this equation. So a0 is 1 plus a1z, a1 is minus 1, so you can place minus 1 and z plus a2z square, a2 is 1 z square, right? Then a3 is minus 1, so we will place a3z cube, so minus 1 and z cube and so on, this will go on. Now अब हमें पता है कि इसकी जो वैल्यू आपको मिलने वाली है वो वैल्यू क्या मिलेगी. विल सॉल्व इट. यू कैन राइट इट एज 1 माइनस जेड प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड क्यूब एंड सो ऑन. सो हमें ये पता चल रहा है कि एक जीपी बन रही है एंड जीपी के इनफाइनाइट टर्म्स का सॉल्यूशन जो होता है, इनफाइनाइट टर्म्स का समीशन होता है ए अपॉन 1 माइनस आर, ए अपॉन 1 minus r, where a is the first term. So if first term is 1, so you can write it as a 1 upon 1 minus r. R is, you will divide the first term by the second term. So you will get r equal to minus z, और minus already लगा है, so you can write it as minus और minus plus हो जाएगा 1 plus z. So this will be the generating function for this sequence. I hope that is clear to you. Now we can take another example. Here you have to find generating function and the sequences given 1, 2 by 3, 3 by 9, 4 by 27 and so on. So in that case, your A0 is 1, A1 is 2 by 3, A2 is 3 by 9, A4 is 4 by 27 and so on. The series will go on. So AZ generating function क्या होता है? 1 plus A0 plus A1Z. So A0 की वैल्यू है 1 plus A1 की वैल्यू है 2 by 3Z, 3 by 9 Z स्क्वायर, 4 by 27 Z क्यूब. तो स्टूडेंट अभी क्या है, ये कोई सीरीज नहीं बन रही है, राइट? ये सीरीज नहीं है तो उसको सीरीज बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, लेट्स से 2 by 3Z है तो मैंने इसे 2 को बाहर लिया, इसे Z by 3 लिखा. 3 by 9 Z स्क्वायर है, 3 बाहर लिया, Z स्क्वायर by 9 को लिख सकते हैं Z by 3 का होल स्क्वायर, राइट? 4 बाहर लिया, Z by 3 का होल क्यूब, राइट? एंड सो ऑन. अब अभी भी ये कोई सीरीज नहीं बन रही है तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 माइनस जेड बाय 3 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं एंड देन सॉल्विंग. सो 1 माइनस जेड बाय 3 से आप दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपको जो लेफ्ट साइड मिलेगा 1 माइनस जेड बाय 3 इंटू
multiplied by az, एंड जब आप 1 माइनस जेड बाय 3 से राइट साइड मल्टीप्लाई करेंगे सो यू विल गेट 1 प्लस जेड बाय 3 प्लस जेड बाय 3 का होल स्क्वायर जेड बाय 3 का होल स्क्वायर एंड प्लस जेड बाय 3 का होल क्यूब एंड सो ऑन. आप इन द सिमिलर वे you will find this. So अब ये हमारी जीपी बन गई है, राइट? और we can write it as a upon 1 minus r because summation is a upon 1 minus r. So you will get a upon यानी कि 1 upon 1 minus z by 3. z by 3 राइट हैंड साइड मिलेगा आपको ये टर्म 1 अपॉन 1 माइनस जेड बाय 3. अब आप इस 1 माइनस जेड बाय 3 को आप राइट साइड ले जाएंगे सो यू विल गेट 1 अपॉन 1 माइनस जेड बाय 3 का होल स्क्वायर, राइट? और व्हेन you will solve it you will find 9 by 3 minus z का होल स्क्वायर. So this will be the generating function related to this sequence. So student, I hope this will be clear to you. Now student, कभी कभी क्वेश्चन आपको इस तरह से आ जाता है जनरेटिंग फंक्शन पर कि आपको एक पर्टिकुलर आरथ टर्म दिया है एंड उस आरथ टर्म से आपको जनरेटिंग फंक्शन पूछा है. सो क्वेश्चन इज फाइंड द जनरेटिंग फंक्शन फॉर द फॉलोइंग न्यूमेरिक फंक्शन. आपको एक पर्टिकुलर न्यूमेरिक फंक्शन दिया है. सो ए आर इज 7 इन डॉट 3 की पावर आर. नाउ वी हैव टू फाइंड ए जेड. So az we already know that az is given by summation of r equal to 0 to infinite ar z की power r. So you will place the value of ar in this equation and you will get this. Now what you will do, 7 एक कांस्टेंट टर्म है तो इसे हम समेशन से बाहर लिख सकते हैं एंड व्हेन यू विल प्लेस r इक्वल टू 0 से आप वैल्यू पुट करना शुरू करेंगे तो व्हेन यू विल प्लेस r इक्वल टू 0 you will get 1. When you will place r equal to 1 you will get 3z. When you will place r equal to 2 you will get 3z का whole square and so on. This term will continue. So 7 upon this is the gp and इसका summation, इसका sum क्या होगा a upon 1 minus r से 1 upon 1 minus 3z. So you will get 7 upon 1 minus 3z as generating function, right? So अगर आपको particular RF term दिया है तो आप इस तरह से generating function calculate कर सकते हैं. Now we will see how we can solve the recurrence relation by the method of generating function. So here we are going to discuss solution of recurrence relation by method of generating function. So consider the first question. In this question, you are given a recurrence relation and the recurrence relation is AR minus 7AR minus 1 plus 10AR minus 2. And you are given the boundary conditions, right? So यहाँ पर हमें question में mentioned है कि we have to use generating function, right? So generating function use करने के लिए student हम क्या करते हैं? For the solution, what we do, we multiplied this whole equation by z की power r. z की power r से आप दोनों साइड multiply करेंगे and you will take the summation, right? Summation लेंगे आप. अब समीशन कहाँ से लेना होता है? जो आपके पूरी इक्वेशन में स्मॉलेस्ट सबस्क्रिप्ट है आप उसे जीरो रख दीजिए. सो स्मॉलेस्ट सबस्क्रिप्ट इज r minus 2, राइट? इस r minus 2 को आप जीरो के इक्वल रखेंगे सो यू विल गेट r इक्वल टू 2. तो इससे हमें पता चलेगा कि आपको समीशन कहाँ से स्टार्ट करना है. सो यू विल टेक द समीशन फ्रॉम r इक्वल टू 2 टू इनफाइनाइट, राइट? अब आप जब मल्टीप्लाई करेंगे z की पावर r से एंड समीशन लेंगे आप क्वेश्चन में r इक्वल टू 2 टू इनफाइनाइट. सो एज अ फर्स्ट टर्म इज ar, सो यू विल राइट इट एज ए आर के साथ जेड आर की मल्टीप्लाई एंड समेशन ले लिया आर इक्वल टू 2 टू इनफाइनाइट. नेक्स्ट इज minus 7 ए आर minus 1, so we'll write minus 7 a r minus 1 is here and summation from 2 to infinite z की power r. Then third term is 10 a r minus 2, so we'll write 10 and यहाँ पर आपने इस तरह से समेशन ले लिया. So now our next step will be students, अब आपको ये क्वेश्चन जो मिली है अब आपको इसे सॉल्व करना है एंड हमारा जो कोशिश रहेगी स्टूडेंट्स वो रहेगी कि हम इस टर्म को, इस टर्म में जो हर टर्म है उसको ए जेड की फॉर्म में लिख सकें, राइट? सो आई एम एक्सप्लेनिंग यू द फर्स्ट पार्ट. यहाँ पर आप इस टर्म को ऑब्जर्व कीजिए. जब आप r इक्वल टू 2 से समीशन करना शुरू करेंगे यहाँ, सो यू विल गेट r इक्वल टू 2 पुट कीजिए, यू विल गेट a2 z square plus when you will place r equal to 3 you will get a3 z cube and so on. You will get this sequence plus and so on. This will be the sequence for this first
टर्म, राइट। इस फर्स्ट टर्म को मैंने ओपन किया, आर इक्वल टू 2 से वैल्यू पुट की। अब अगर मुझे इसे जनरेटिंग फंक्शन की फॉर्म का बनाना है, सो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि दो टर्म मिसिंग है। इस पूरी इक्वेशन में दो टर्म मिसिंग है, और दो टर्म कौन कौन से हैं? a0 प्लस a1z अगर इसमें ऐड कर दें और a0 प्लस a1z माइनस कर दें। सो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम राइटिंग हियर a0 प्लस a1z, a1z। ये दो टर्म मैंने इस टर्म में ऐड किए, तो अगर दो टर्म ऐड किए तो मुझे माइनस भी करने पड़ेंगे। सो आई विल राइट a0 माइनस का एंड माइनस का a1z. I hope that is clear to you. Now what you will do, you will see that this whole term is az, right? Az को जब आप ओपन करते हैं तो यही सीक्वेंस मिलता है, a0 plus a1z plus a2z square plus a3z cube and so on. So this is az, right? और माइनस में आपको क्या मिला? माइनस a0 माइनस a1z. So ये जो आपका ये जो फर्स्ट टर्म है, इस टर्म को अगर az में रिप्रेजेंट करेंगे, so this will be जनरेटिंग फंक्शन के टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे, so this will be az minus a0 minus a1z. I hope that is clear to you. Now we will explain the next term. Let's consider this term, right? जब आप इसमें r इक्वल टू 2 से वैल्यू पुट करना शुरू करेंगे, -7 तो बाहर है, राइट? तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, a के साथ सब्सक्रिप्ट में r-1 है, राइट? तो आपको z के साथ भी पार में r-1 की फॉर्म का बनाना होगा। सो वी विल टेक 1z आउटसाइड ऑफ द समेशन, सो वी विल राइट 7z। ठीक, अब 7z एक z आपने बाहर ले लिया है, तो यहाँ पर जो रिमेनिंग बचेगा वो z की पार r-1 बचेगा। देन यू विल कैलकुलेट द वैल्यूज, राइट? और जब आप 2 से वैल्यू पुट करना शुरू करेंगे तो ये आपको मिलेगा a1z प्लस a2z स्क्वायर। ये आपको सीरीज a1z से मिलेगी, राइट? क्योंकि 7 के साथ आपने एक z तो बाहर ले लिया है, तो जब आप r इक्वल टू 2 से पुट करेंगे तो a1z से वैल्यू मिलेगी। इट मीन्स a1z से स्टार्ट होगा, इट मीन्स आपका एक टर्म मिसिंग होगा, दैट इज a0। सो आप a0 ऐड करेंगे और a0 उसमें माइनस करेंगे, सो यू विल गेट दिस टर्म az माइनस a0। नाउ consider the third term. In third term we will take, because this is r-2, तो आपको z में z की पार भी r-2 बनानी होगी, राइट? सो आप z स्क्वायर बाहर कॉमन ले लीजिए, एंड व्हेन दिस इज a r-2 z की पार r-2 और समेशन r इक्वल टू 2 से स्टार्ट है, सो दिस विल बी az, राइट? जब आप r इक्वल टू 2 से वैल्यू पुट करना शुरू करेंगे तो ये आपको जनरेटिंग फंक्शन टाइप का मिलेगा, एंड दिस विल बी 10z स्क्वायर az। अब स्टूडेंट आप इस पूरी इक्वेशन में से ये तीनों टर्म को हमने एक्सप्लेन किया, अब तीनों टर्म में से आप az की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। az विल बी दिस वन, राइट? अब आपको स्मॉल a0 और स्मॉल a1 की वैल्यू गिवन है, दैट आर बाउंड्री कंडीशंस, राइट? स्मॉल 0 और स्मॉल a1 की वैल्यू आपने पुट की। नाउ व्हाट यू विल डू, दिस इज az, राइट? हमें क्या बताना है सोल्यूशन के लिए, हमें ar की स्मॉल ar वाला टर्म की वैल्यू बतानी है, राइट? ये हमें कैलकुलेट करना है, दिस विल बी द सोल्यूशन। सो व्हाट यू कैन डू इज, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो आपको जनरेटिंग फंक्शन मिला है, आप इसके पार्शियल फ्रैक्शन कीजिए, राइट? सो पार्शियल फ्रैक्शन करने पर और सॉल्व करने पर आपको ये टर्म मिल जाएगा, az इक्वल टू 3/1 माइनस 2z प्लस 7/1 माइनस 5z। अब इस सीक्वेंस को मैंने क्या किया, az को मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, राइट? इस सीक्वेंस को हम लिख सकते हैं 1/1 माइनस 2z को लिख सकते हैं r इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट 2 की पावर r z की पावर r, और इस टर्म को हम लिख सकते हैं 7 बार एंड 5 की पावर r z की पावर r। सो नाउ व्हाट वी विल डू स्टूडेंट्स, हम यहाँ से arth टर्म को इक्वेट कर लेंगे, राइट? सो व्हेन वी इक्वेट arth टर्म, सो यहाँ से arth टर्म, तो ये किसके इक्वल होगा, 3 तो बाहर है, यहाँ पर समीशन से बाहर है, और ए आर के किसके कंपेयर करेंगे, 2 की पावर आर, तो ये हो जाएगा 3 डॉट 2 की पावर आर प्लस 7 डॉट, इस टर्म से क्या मिलेगा, 5 की पावर आर। सो दिस विल बी द वैल्यू, दिस विल बी द रिक्वायर्ड वैल्यू फॉर ए आर एटम, एंड दिस इज योर सोल्यूशन। सो स्टूडेंट, दिस इज द मेथड कि हम जनरेटिंग फंक्शन से किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। आई होप दैट विल बी क्लियर टू यू। We can consider one more question. In this question, we have to solve this using the generating function. So for this question, what we will do, we will take the summation, right? Z की पावर R से पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे, एंड समेशन लेंगे हम कहाँ से, R की स्मॉलेस्ट सब्सक्रिप्ट। तो इस पूरी इक्वेशन में हमें R का जो स्मॉलेस्ट सब्सक्रिप्ट है वो क्या मिल रहा है, R इक्वल टू 0, राइट? स्मॉलेस्ट सब्सक्रिप्ट R है तो हम इसे 0 से प्लेस कर देंगे, राइट? 0 पुट करेंगे।
सो फर्स्ट टर्म है हमारा ए आर प्लस टू, देन यू विल गेट, इसमें z की पावर r से मल्टीप्लाई कीजिए और समीशन ले लिया r इक्वल टू 0 से. सो दिस इज how you will get this first term. And then minus 2 ar plus 1, right? So आपका ये हो जाएगा. And then third term is ar. So इसमें आप z की पावर r से मल्टीप्लाई करेंगे एंड समेशन लेंगे. और क्योंकि हमें दोनों साइड लेना है समेशन और मल्टीप्लिकेशन, so you will get this. Because 2 की पावर r के साथ z की पावर r आया और r इक्वल टू समेशन जो है वो 0 से. Now what will be our next step? What we will try to do? We will try to convert it in the form of generating function, right? सो इफ यू कंसीडर, हमने कहा था कि ए की पावर आर भी जो भी सब्सक्रिप्ट है आपका, जेड के साथ भी वही सब्सक्रिप्ट आपका होना चाहिए, राइट? तो हम यहाँ पर देखें कि आर ए के साथ आर प्लस टू है, तो जेड की पावर में भी आर प्लस टू होना चाहिए, राइट? तो आर प्लस टू करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए और जेड स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए इसे. तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा 1 बाय जेड स्क्वायर, राइट? और ऊपर क्योंकि जेड स्क्वायर होगा तो ये जेड की पावर आर प्लस टू बन जाएगा. सो दिस इज योर टर्म. एंड देन इस केस में ए आर प्लस वन गिवन है, इसमें जेड की पावर आर प्लस वन बनाने के लिए हम जेड से मल्टीप्लाई करेंगे, जेड से डिवाइड करेंगे. सो यू विल गेट 2 by z outside and a r plus 1 z की पावर r plus 1, राइट? एंड इस टर्म में क्योंकि a की पावर r z की पावर r, दोनों a का सब्सक्रिप्ट और z की पावर सेम है, सो विल डू नथिंग इन दैट केस. एंड इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये एक सीक्वेंस बनेगा 1 plus 2z का होल स्क्वायर प्लस 2z का होल क्यूब. सो यू कैन राइट इट एज a अपॉन 1 माइनस r, gp का एंड इनफाइनाइट टर्म्स का सम लगाएंगे तो ये मिलेगा 1 अपॉन 1 माइनस 2z. सो नाउ अब आप इस सीक्वेंस को ओपन करेंगे, राइट? नेक्स्ट स्टेप में आप इसे ए की पावर ए जेड की फॉर्म में बनाना है, यानी कि जनरेटिंग फंक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. तो जब स्टूडेंट्स आप r इक्वल टू 0 से पुट करना शुरू करेंगे तो ये मिलेगा ए टू जेड की पावर 2. ए टू से सीक्वेंस स्टार्ट होगा, तो इसमें किस किस टर्म की कौन कौन सा टर्म मिसिंग होगा, ए जीरो और ए वन जेड. सो आप सीक्वेंस में ए जीरो और ए वन जेड एड करेंगे और वही माइनस भी कर देंगे. सो यू विल गेट ए जेड माइनस ए नॉट माइनस ए वन जेड अपॉन जेड स्क्वायर. इन द सिमिलर वे इस सीक्वेंस को जब आप ओपन करेंगे सो यू विल गेट आर इक्वल टू 0 जब पुट करेंगे तो ए वन से सीक्वेंस मिलेगा ए वन जेड प्लस ए टू जेड स्क्वायर. तो यहाँ पर ए जीरो मिसिंग होगा, तो आप ए जीरो प्लस और ए जीरो माइनस करेंगे, सो यू विल गेट दिस सीक्वेंस 2 by z a z minus a zero. And this is your generating function directly, right? So you can write it as az और right side आपको मिला 1 upon 1 minus 2z. Now you will solve this equation and you will find the value of az. I hope that is clear to you. So हमने यहाँ पर solution किया and you can solve it on your own and you will get az की value आप इस तरह से calculate करेंगे, right? az आपको ये मिल जाएगा, ठीक? जब आपको az की वैल्यू ये मिली, देन यू विल अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शंस एंड यू कैन राइट एज बाय पार्शियल फ्रैक्शन आपको az की वैल्यू ये मिल जाएगी, राइट? अब हमारा इस टर्म में से ए आर टर्म कॉमन लेना है, राइट? सो az इज जनरेटिंग फंक्शन की वैल्यू ये होती है, लेफ्ट हैंड साइड में az है, सो az को हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं और राइट हैंड साइड में हमें ये टर्म मिला है. तो जब हम इसे ओपन करेंगे, इसको अगर हम ओपन करें तो हमें मिलेगा r प्लस वन जेड की पावर r, माइनस 3 बाहर है, ये मिलेगा सीक्वेंस r इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट r z की पावर r. और इस टर्म को ओपन करेंगे तो ये वाला समेशन आपको मिल जाएगा, राइट? अब आपका काम क्या रहेगा, यहाँ से ए आर टर्म को कंपेयर करना. सो ए आर टर्म वी विल बी r प्लस वन, यहाँ से मिलेगा फर्स्ट टर्म से, सेकेंड टर्म से मिलेगा माइनस 3r. सो ए आर टर्म विल बी r प्लस वन माइनस 3r प्लस 2 की पावर r. दिस विल बी योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. सो स्टूडेंट मैंने यहाँ पर जो कैलकुलेशंस है वो अवॉइड की है. यू कैन सॉल्व इट ऑन योर ओन, यू कैन ट्राई इट. कोई भी टिपिकल काम नहीं है, मैंने आपको यहाँ पर आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है कि आपको कैसे सॉल्व करना है, राइट? आई होप दैट इज क्लियर टू यू. सो जनरेटिंग फंक्शन से हम दोनों तरह की इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं. यू कैन सॉल्व होमोजीनियस एज वेल एज नॉन होमोजीनियस इक्वेशन यूजिंग द जनरेटिंग फंक्शन. Thank you so much for students for watching this video. To like, share and subscribe the video.